वेलकम वॉचर्स। मैं हूं मास्टर जगबर। आप देख रहे हैं लास्ट डेज डिसेप्शन नॉट एलियंस द रैप्चर। अजीजों, इस वक्त यूएस कांग्रेस के अंदर यूएफओ हेयरिंग्स ऐसे ही नहीं की जा रही हैं। एक बहुत बड़ी डिसेप्शन, एक बहुत बड़ा धोखा जो है वो दुनिया को दिया जाने वाला है, दुनिया की तमाम गवर्नमेंट्स की तरफ से मिलकर। वो क्या धोखा है और उससे होगा क्या, मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। लेकिन पहले आप जरा ये क्लिप देखें कि कैसे न्यूज के अंदर अब ये बात की जा रही है कि एलियन इन्वेजन जो है या एलियन एजेंडा जितना भी है उसका ताल्लुक रैप्चर से है। You're about to watch something so intense. If a bunch of Christians go missing, just know it wasn't aliens. अब ये बंदा ये कह रहा है कि अगर बहुत से क्रिश्चियंस अचानक गायब हो जाते हैं दुनिया के अंदर तो ये कोई एलियन इन्वेजन नहीं थी, ये रैप्चर था। Check this out. What do you make of former U.S. intelligence official David Grush's statement at the House hearing stating that we recovered non-human remains from an alien craft? Yeah, well, actually, if you read the Bible, this shouldn't surprise you because I think this is all part of a custom-tailored last days deception to explain away the very event that God says is next on His prophetic time calendar. And that event is called the rapture of the church. And that is when God evacuates all born-again Christians, takes them off the planet before the worst time in the history of mankind is thrust upon the planet. The Bible calls that time the 7-year tribulation. So if in fact that event is going to happen and you're going to see millions of people disappear and you're an enemy of God, then what would you be doing? You better be coming up with the best excuse you can think of to explain away why all of a sudden these people disappeared, and specifically and only specifically Christians. Well, believe it or not, that's exactly what we have with the alien deception. They're called aliens. I agree with that guy. They're non-humans, but I don't agree with their assessment that there are a higher evolved race of beings from the other side of the solar system or galaxy or whatever here to help us. It's a deception. They call them aliens. The Bible calls them demons. And they are right now being used to become the perfect excuse to explain away, hey, what happened to those people when all of a sudden they disappeared off the planet? And again, what should you expect if we're getting close to that event the Bible calls the rapture? Then you should see exactly what we're seeing in the news right now. And that is, for decades, we've known that the government and the governments around the world have completely denied any existence of aliens, alien crafts, whatever. A few years ago, इस बंदे का कहना है कि जैसे बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि रैप्चर होगा, उस चीज को छुपाने के लिए हुकूमतें क्या करेंगी, नाम लगा देंगी कि एलियंस आ गए और लोगों को उठाकर ले गए हैं, ताकि लोग जो हैं वो पैनिक ना करें और लोग जो हैं वो मसीह के ऊपर बिलीव ना करना शुरू कर दें, जिसकी वजह से गवर्नमेंट्स इस इवेंट को हाइड करने के लिए, छुपाने के लिए लोगों को कह देगी कि एलियन इन्वेजन हो गई है और लोगों को एलियंस जो हैं वो उठाकर ले गए हैं। अब सिर्फ ये ही नहीं बल्कि अगर आप YouTube के ऊपर सर्च करें रैप्चर ड्रीम तो आप देख सकते हैं कि ये 1 साल पुरानी वीडियो है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 हफ्ते पहले की वीडियो, ये 2 महीने पहले की वीडियो। नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 महीने पहले, 3 महीने पहले की वीडियो, 1 महीने पहले की वीडियो, 19 घंटे पहले की वीडियो। और ये सारी रैप्चर ड्रीम्स हैं जो कि लोग अपनी अपनी ख्वाबों के बारे में बात कर रहे हैं। ये 6 दिन पहले की वीडियो है कि कैसे रैप्चर जो है उनको ख्वाब में दिखाई दे रहा है। अजीजों, ये अचानक से मीडिया को क्रिश्चियनिटी इतनी ज़्यादा याद क्यों आ गई है? जॉर्डन पीटरसन को अगर हम देखें तो उसने एक सीरीज़ निकाल दी है जिसका नाम है द गॉस्पल्स, और उसकी एक एपिसोड भी रिलीज़ कर दी गई है जिसका नाम है व्हाट इज़ द वर्ड, जिसके अंदर ये बाइबल को पढ़ रहे हैं, खुद को ये ऐसे शो कर रहे हैं कि जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं बाइबल के ऊपर, जबकि इसका हमेशा ताल्लुक होता है क्रिश्चियंस को टारगेट करके, क्रिश्चियंस को ये धोखा देना कि हम भी क्रिश्चियन हो गए, हमने भी सच जान लिया, हम भी मान गए, और फिर क्या करते हैं कि ये लोगों को खुदा के कलाम से दूर ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि जब लोगों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का पता चलना शुरू हुआ, जैसे ही लोगों की आंखें खुलना शुरू हुई, साथ ही इन्होंने अपने प्लांट किए हुए एक्टर्स जो हैं वो ले आए। जैसे रसल ब्रांड इसकी एग्जाम्पल है जो कि लोगों को बाद में योगा की तरफ ले गया। फिर उसके अलावा अगर आप देखें कान्ये वेस्ट, जिसने ये कन्फेस किया था कि मैं क्रिश्चियन हो गया हूँ, मैं मसीही हो गया हूँ, लेकिन उसके बावजूद आप नोट करें कि ये वापस अपनी पुरानी लाइफ में चला गया है। इन सब का मकसद सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियंस को एंकर करके उनको गलत साइड पर लेके जाना होता है। इनका हरगिज मकसद जो
जो है वो मसीहत को फैलाना नहीं है, बल्कि उसको कम करना है या उसको ख़त्म करना है। अब ये जो लोग मान रहे हैं कि जी गवर्नमेंट्स ये कहेंगी कि एलियन इन्वेजन हो गई है, एलियंस जो हैं वो लोगों को उठाकर ले गए हैं, स्पेसिफिकली क्रिश्चियंस को, जबकि हकीकत में वो रैप्चर हो गया हुआ होगा, तो ये बात मेरे मानने में इसलिए नहीं आती है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि नो वन नोज द आवर, किसी को नहीं पता कि वो कौन सी घड़ी है जिस वक्त यीशु मसीह ने रैप्चर करने के लिए अपनी कलीसिया को आना है। आप पढ़ सकते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा नो वन नोज अबाउट द डे और आवर, यानी कि उस घंटे या उस दिन के बारे में कोई नहीं जानता, नॉट इवन द एंजल्स इन हेवन। अगर हम ये बात करें कि इल्यूमिनाटी को जी गाइड करता है लूसीफर, शैतान जो है उसको गाइड करता है, तो शैतान को तो पता होगा कि खुदा प्लान कर रहा है अब रैप्चर करने का, तो वो बता देगा CIA को या इन गवर्नमेंट्स को कि अब हम जब ये रैप्चर होने वाला है तो हम इस तरह से करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंजल्स को भी नहीं पता, नोर द सन बट ओनली द फादर नोज कि किस वक्त यीशु मसीह को भेजना है, किस वक्त रैप्चर होना है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ये सेकंड कमिंग की बात हो रही है, नहीं जी, रैप्चर का भी किसी को टाइम नहीं पता। बाइबल के अंदर कहीं पर भी आपको टाइम पढ़ने को नहीं मिलेगा कि रैप्चर कब होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को टाइम का नहीं पता, और दूसरे नंबर पर जब ये लोग बिलीव ही नहीं करते हैं कि रैप्चर होगा, अगर ये बिलीव करते होते हैं कि रैप्चर होगा तो ये खुद खुदा के कलाम के ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर लेते, यीशु मसीह के ऊपर बिलीव क्यों नहीं कर लेते? नहीं कर रहे ना यकीन, ये गवर्नमेंट वाले और ये खास तौर से जितने भी शैतान के बच्चे हैं जो डीमंस को एलियंस कहते हैं। तो आप नोट करें कि जब उनका बिलीव ही नहीं है कि रैप्चर होना है या बाइबल सच्ची है, या फिर उनको पता ही नहीं है कि किस वक्त रैप्चर होना है, तो वो प्लानिंग कैसे कर रहे हैं इस वक्त से कि जनाब हम एलियन इन्वेजन के ऊपर बात लगा देंगे या नाम लगा देंगे। ये तभी मुमकिन है कि जब प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम इन्होंने खुद ही प्लांट की हो चर्च के अंदर, ताकि मसीहियों को पहले इस तालीम के ऊपर लाया जाए कि भाई इससे पहले कि मुखालफे मसीह आए उससे पहले ही कलीसिया जो है वो आसमान पर उठा ली जाएगी, यानी कि कलीसिया को कुछ भी फेस करना नहीं पड़ेगा। ज़मीन के ऊपर जो तबाही हो रही होगी या जो बर्बादी आएगी या जो मुखालफे मसीह आएगा उसकी छाप आएगी, उस सब से कलीसिया का क्या लेना देना, क्योंकि कलीसिया तो रैप्चर कर ली जाएगी, आसमान पर चली जाएगी। तो अगर ये तालीम प्लांट कर दी जाती है मसीहियों के जहन के अंदर, और इसी तालीम को सच साबित करने के लिए ये खुद से एलियन एजेंडा लेके आते हैं और खुद से ये न्यूज़ के अंदर ये बातें करते हैं कि नहीं जी एलियंस जो हैं वो उठा कर ले गए हैं, तो ये लोग जो कि अभी मान रहे हैं, जैसे ये बंदा कह रहा है कि जनाब असल में होगा ये कि रैप्चर हो गया होगा, और उसको छुपाने के लिए हुकूमतें ये कहेंगी कि नहीं रैप्चर नहीं हुआ बल्कि क्या हो गया है, एलियंस उठाकर ले गए। तो आप नोट करें कि इस तरह का नोशन और इस तरह की तालीम, अगर मैं आपको बताऊं कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर की तालीम कब से चर्च में आई है, तो आप देख सकते हैं कि ये तालीम किसने दी थी और कब आई थी। द आइडिया दैट द रैप्चर वुड occur before the tribulation, known as the pre-tribulation view, originated in the 1830s। यानी कि 1830 से पहले कलीसिया मानती थी कि रैप्चर जो है वो यीशु मसीह की दूसरी आमद पर होगा। The view was developed by John Nelson Darby। जॉन नेल्सन डर्बी से पहले ये आइडिया किसी को नहीं आया था कि चर्च जो है वो इससे पहले कि मुखालफे मसीह आए, इससे पहले कि अज़ार सानिया आए, उससे पहले उठा लिया जाएगा। यानी कि इस वक्त जो लोग प्रीच कर रहे हैं वो किसकी तालीम प्रीच कर रहे हैं? वो प्रीच कर रहे हैं जॉन नेल्सन डर्बी की तालीम, जो कि 1830 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी चर्च के अंदर। और अब आप नोट करें कि सन 2000 के अंदर सारे चर्चेस यही तालीम मनो अन यही तालीम दे रहे हैं। बहुत कम चर्च हैं जो कि ये तालीम दे रहे हैं कि रैप्चर जो है वो कब होगा, वो तब होगा जब अज़ार सानिया पूरी हो जाएंगी, यानी कि 7 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन आप नोट करें कि इससे होगा क्या? अगर ये एलियन इन्वेजन पर बात करते हैं न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ के अंदर ही कुछ लोग आकर कहते हैं कि नहीं जी रैप्चर हो चुका है, हम लेफ्ट बिहाइंड हो चुके हैं, हमें यीशु मसीह ने छोड़ दिया है यहाँ पर, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, रैप्चर हो गया, ये बाइबल सच्ची है, इसको प्रूव कर रहा है। इस तरह की बातें अगर करते हैं तो आपको समझ जाना है कि ये सब कुछ प्लान था इन लोगों का, ताकि लोगों को गुमराह किया जाए। वो शख्स जो दिन रात इसी खौफ के साथ चर्च भी मिस नहीं कर रहा, इबादतें मिस नहीं कर रहा, रोज़े रख रहा है, अच्छे तरीके से एक अच्छे क्रिश्चियन की तरह बिहेव कर रहा है, वो ये मानकर अपने दिल में चल रहा है कि अगर मैं इस तरह से बिहेव करूंगा, अगर मैं अच्छा रहूंगा, पाक रहूंगा, तो यीशु मसीह मुझे अपने साथ रैप्चर में ले जाएंगे। लेकिन अगर मैं गंदा हो गया, अगर मैंने बुरे काम किए, तो मुझे यीशु मसीह छोड़ जाएगा। तो वो शख्स
जिसने दुआएं की, जिसने रोजे रखे, और वो जब ज़मीन पर खुद को देखेगा तो वो क्या करेगा? वो कहेगा कि यीशु मसीह ने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे छोड़ गया यीशु मसीह यहाँ पर। मैंने इतनी इबादतें की, मैंने इतने रोजे रखे, मैंने अपनी ज़िंदगी को जो है हर गुनाह से बचा के रखा, तो फिर भी मुझे जो है यीशु मसीह यहाँ पर छोड़ गया। तो वो क्या करेंगे? वो रिबिलियन में आ जाएंगे, वो बागी हो जाएंगे। और वो बागी होकर क्या करेंगे कि वो दूसरी साइड चूज कर लेंगे कि अगर खुदा ने हमें छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, जितनी सी हमारी ज़िंदगी रह गई है हम ये तो आसानी से जिए। और उसको जीने के लिए ये क्या करेंगे कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे मार्क ऑफ द बीस्ट। यही इनका मकसद है। वो लोग जो कि रैप्चर के अंदर बिलीव करते हैं कि रैप्चर जो है वो इससे पहले कि ज़ालसानियाँ शुरू हों, उन लोगों को इस तरह से टारगेट किया जाएगा कि वो बागी होकर यीशु मसीह से ये बिलीव करेंगे कि यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया तो बस फिर हम भी यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। ये साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो है होने वाला है। यही वार्निंग मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था कि अगर ऐसा हो तो आपने समझ जाना है कि ये रैप्चर नहीं हुआ है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है रैप्चर के ऊपर, आप प्लीज़ अपने ऊपर रहम करें, वो वीडियो देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो कि रैप्चर क्यों, किस वक्त होना चाहिए, कब होगा, बाइबल के मुताबिक किस वक्त होगा। और ये याद रखें कि 1000 सानियों से पहले रैप्चर की तालीम जो भी चर्च आपको दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जॉन नेल्सन डर्बी की तालीम दे रहा है, वो बाइबल की तालीम नहीं है। मजीद मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर साल 6 लाख लोग अमेरिका के अंदर मिसिंग हो जाते हैं। ये सेम इन्होंने गेम यही करनी है। जब इन्होंने बताना है ना कि जी जनाब इतने लोग मिसिंग हो गए हैं, एलियंस उठाकर ले गए हैं, तो उस वक्त ये नंबर्स चलाएंगे बिल्कुल उसी तरह से जैसे हालिया गुजरी बीमारी में इन्होंने नंबर्स चला के लोगों को प्रेशराइज किया था कि वो जाकर क्या लें, रॉकेट लें। इसी तरह से ये लोगों को प्रेशराइज करेंगे कि देखो जी तुम्हें तो छोड़ दिया खुदा ने, इतने लोगों को ले गया खुदा लेकिन तुम्हें नहीं लेके गया। तो ये गेम करने के लिए ये उन्हीं लोगों के नंबर्स दिखाएंगे जैसे कि हालिया गुजरी बीमारी के अंदर उतने ही लोगों के नंबर्स थे या उससे थोड़े से बढ़ा चढ़ाकर बताए गए थे जितने लोग हर साल सिर्फ जुकाम से अमेरिका के अंदर मर जाते हैं। आप नोट करें कि वही सेम चीज़ चलाई जाएगी। अगर इन्होंने किया तो ये सेम वही चीज़ करेंगे कि जो लोग मिसिंग हो जाते हैं उतने ही नंबर्स या उससे थोड़े से ज़्यादा नंबर्स चला देंगे, लेकिन कोई भी इनसे नहीं पूछेगा कि उनकी पूरी डिटेल्स, वो कहाँ रहते थे, उनका नाम क्या था, ये सारी चीज़ें कोई भी उनसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो अथॉरिटी है। तो जब हुकूमत कह रही होगी कि हाँ जी इतने लोग मिसिंग हो गए हैं और उनको एलियंस ले गए हैं, तो फिर दुनिया को मानना पड़ेगा कि वो लोग जो कि बाइबल के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं या रैप्चर के ऊपर बिलीव नहीं करते हैं, वो तो ये बिलीव कर लेंगे कि हाँ जी एलियन इन्वेजन हो गई। लेकिन जो लोग रैप्चर के ऊपर बिलीव करते हैं, बाइबल के ऊपर बिलीव करते हैं और ये गलत तालीम जो रैप्चर की है इसके ऊपर जो बिलीव करते हैं, उन लोगों के दिल के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। और ये चोट जानबूझकर धोखा दिया जाएगा शैतान की तरफ से ताकि लोग खुदा को छोड़ दें। और खुदा को क्यों छोड़ दें? ताकि मुखालिफ मसीह की छाप ले लें। गाइज आपको ये चीज़ हरगिज़ नहीं भूलनी है और याद रखनी है कि एल्बर्ट पाइक ने तीसरी आलमी जंग के बारे में क्या कहा था। उसमें उसने यही कहा था कि मुस्लिम वर्ल्ड और जो स्टेट ऑफ इसराइल है इसके दरमियान जंग होगी जो कि हमारे सामने हो रही है, और उस जंग के नतीजे में बाकी कौमें जो हैं वो फिजिकली, मॉरली, स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली एग्जॉस्ट हो जाएंगी। और उसके बाद एंड पे इन्होंने क्या करना है, ये देखें जी एंड पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है। एंड पे इन्होंने लिखा हुआ है will follow the destruction of Christianity and atheism, both conquered and exterminated at the same time। ये इनका मेन मकसद है, मसीहत को एक्सटर्मिनेट कर देना, बिल्कुल सिरे से ख़त्म कर देना। ये इनका मकसद है ताकि प्योर डॉक्ट्रिन ऑफ लूसीफर जो है उसके ऊपर लोगों को लाया जा सके। तो गाइज आज की वीडियो से मैं आपको यही खबरदार करना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसी न्यूज़ मिलती है कि इतने लोग गायब हो गए और क्रिश्चियंस या क्रिश्चियन कंटेंट बनाने वाले लोग कहते हैं कि देखा हमने कहा था ना कि रैप्चर हो जाएगा और ये एलियंस के ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे, वही हो रहा है, तो आपने समझ जाना है कि ये बहुत बड़ी डिसेप्शन है। कोई रैप्चर नहीं हुआ है। नो वन नोज द आवर। किसी को नहीं उस टाइम का पता कि कब यीशु मसीह ने आना है। तो जब इनको टाइम का ही नहीं पता तो ये उसके लिए पहले से एलियन एजेंडा प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं।